Welcome to all of you to Class 6 NCERT Science Book Chapter number 5 Separation of Substances. In Chapter 4 we studied about how can we sort materials and what are properties of materials. In Chapter 5 we will study how we can separate substances if there are mixtures. There are more than one materials at one place. So let's list down the topics that we are going to cover in this chapter. We will cover why we do need separation method, and then we will go to different method of separation: hand picking, threshing, winnowing, sieving, and then filtration, evaporation, decantation, and then also we will go to how can we need more than one method to separate substances, and what is the effect of temperature on solubility. So let's start. In the given picture and the activities here, in day to day life, how we separate different materials from the mixture. Here in table 5.1, why do we separate substances? तो हमको separate करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? Because sometimes in one mixture there are some impurities, so we want to remove impurity so that we can consume it or we can use it. And sometimes there are more than one substances in a mixture, so we want to use it separately, so we want to separate, like milk and butter. And sometimes there might be some harmful material which we don't want, so we need to remove it. So this is the reason why we need method of separation. So let's go for some method of separation. So the simplest one is hand picking. When hand picking method is suitable, when the size of impurities are a little bigger, like stone, husk, so we can see it and we can pick it up, and the amount of impurity should be very less. It should not be very large, so that we can do it manually. The next method is threshing. What is threshing is? Threshing is the process by which we separate grains from stalks. जैसे गेहूं का है, धान का है, तो उसमें हम दाने उसको स्टैक्स को पीट करके फिर दाने अलग करते हैं. सो वी इन दिस प्रोसेस वी बीट द स्टैक्स टू फ्री द ग्रेन्स फ्रॉम ग्रेन सीड. तो हमको पीट पीट के स्टैक से सीड अलग करते हैं. दैट इज थ्रेशिंग. एंड नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग. व्हाट इज दिस? विनोइंग uses the property of mixture कि there are more than one substance and some are lighter than other. तो इसमें by the force of wind, or we do it manually by blowing air, so light materials दूर चले जाते हैं and heavy material पास में गिर जाते हैं. जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, तो grains पास में गए and husk and other lighter materials are going away. So in this way winnowing can help us to separate husk and grains. It helps to separate heavier materials from lighter components. So next method is sieving. So what is this? In this method we use the different size of materials to separate. So since in mixture there are different size of material, let's say in pebbles and stones as there in sand. तो pebbles and stones का size ज़्यादा बड़ा है in comparison to sand. So when we sieve it with suitable size, तो जो sand नीचे चला जाएगा and pebbles and stones वो ऊपर sieve पे बच जाएगा. And similarly we do it for our day to day activities: sieving flour and removing husk. Next method is sedimentation and decantation and filtration. So what is this and how we use it? If there are heavier material and
एंड सम लाइटर मटेरियल, तो हम उसको पानी में डाल देंगे तो जो हैवी कंपोनेंट है, हैवियर कंपोनेंट है, दैट विल सेटल। तो सेटल होने के बाद क्या होगा, वी कैन टेक आउट द लाइटर मटेरियल एंड वी कैन थ्रो द हैवियर मटेरियल अलॉन्ग विद वाटर, सो दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो व्हेन वाटर इज रिमूव्ड along with the dust is called decantation। और sedimentation क्या है, when heavier component is in a mixture settles after water is added to it is called sedimentation। तो वाटर में जो डस्ट है या हैवी पार्टिकल है वो बैठ जाएगा। सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जैसे हमारा तेल है एंड पानी है, तो हम रख देंगे तो सेटल डाउन हो जाएगा, तो सेडिमेंट हो गया, हैवी पार्टिकल, हैवी मटेरियल जो है वाटर वो नीचे से जाएगा एंड ऑयल ऊपर रह जाएगा। तो हम उसको डिकेंटेशन से ऊपर वाला अलग कर लेंगे बर्तन में एंड नीचे वाला पानी अलग बच जाएगा। तो इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट मटेरियल्स या लिक्विड्स विच हैव डिफरेंट डेंसिटी, या तो एक लाइट है या हैवी है। अब फिल्ट्रेशन, चाय हम जैसे सेपरेट करते हैं तो हम चाय इधर ऐसे पोर करके उसको डिकेंटेशन से कर सकते हैं या फिल्ट्रेशन से करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या है डिफरेंस है, वी यूज सम स्ट्रेनर लाइक फिल्टर विथ पोर्स, तो हम इन बिटवीन ऐसे रख देंगे लिक्विड एंड अदर साइड बर्तन में, तो हम डालेंगे तो थ्रू स्ट्रेनर जाएगा, तो जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रेनर पे रह जाएंगे एंड लिक्विड विल पास ऑन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो ये पोर्स के थ्रू लिक्विड चला जाता है। तो ऐसे क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं एंड क्लॉथ में ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स हैं एंड फिल्टर पेपर इज वन टाइप ऑफ फिल्टर वेयर देर आर वेरी फाइन पोर्स, तो केवल पानी जाएगा या छोटा पार्टिकल डस्ट रहेगा वो भी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पोर्स वो छोटे रहेंगे। नेक्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये हमेशा होता रहता है जब भी पानी अपना खुले में अवेलेबल है। इस मेथड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे साल्ट है, कॉमन साल्ट है और पानी है, वो एक मिक्सचर में है, तो हम पानी जैसे इवेपोरेट कर देंगे तो केवल कॉमन साल्ट बचेगा, तो पानी अलग हो गया, ओनली साल्ट इज अवेलेबल। तो इन दिस वे वी कैन यूज इवेपोरेशन फॉर सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम मिक्सचर। समटाइम्स वी नीड मोर देन वन मेथड टू सेपरेट, क्योंकि वन इज नॉट सफिशियंट, तो हमको कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, एग्जांपल है सैंड और साल्ट का मिक्सचर है, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, सैंड एंड साल्ट मिक्सचर को पानी में डाल देंगे। पानी में डालने पे क्या होगा, जो साल्ट है पानी में सलूबल है तो पानी में घुल जाएगा, तो बचेगा सैंड। सैंड क्या होगा, फिर सेटल डाउन हो जाएगा। सैंड सेटल डाउन हो गया तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सैंड अलग हो गया एंड पानी विथ साल्ट हमको बाहर अलग मिल गया। या उसको डिकेंटेशन भी कर सकते हैं, बट फिल्टर विल बी मच बेटर देन डिकेंटेशन। तो हमको पानी एंड साल्ट एक तरफ आ गया, फिर उसको हम क्या करेंगे, पानी एंड साल्ट को इवेपोरेट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट बच जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो हमारा साल्ट और सैंड दोनों अलग अलग हो गया। मान लीजिए हमको पानी को भी बचाना है कि पानी उड़ नहीं जाए इवेपोरेट होके, तो उसको हम ये जो मेथड दिया हुआ है पिक्चर में, केटल में हम साल्ट एंड वाटर रख देते हैं एंड आइस के साथ एक हमें बर्तन जो रखे हैं आइस के साथ केटल के स्प्राउट पे रखेंगे, तो जो पानी इवेपोरेट होकर इससे निकलेगा गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, वो इसमें ठंडा होके वो कूल डाउन होगा, तो ड्रॉप ड्रॉप वो पानी इधर बीकर में आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सैंड भी एक अलग हो जाएगा, फिल्टर पेपर पे या फिल्टर पे मिल जाएगा एंड पानी भी हमारा इस बीकर मिल जाएगा एंड जो साल्ट है साल्ट केटल में रह जाएगा। इस तरीके से हम सैंड, साल्ट एंड पानी सेपरेट करके तीनों अलग अलग करके पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब कि हम क्या पानी में हम जितना भी मटेरियल डालते रहेंगे वो घुलता जाएगा अगर कोई घुलने वाली चीज़ है तो देयर इज लिमिट, वो हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन मटेरियल इन वाटर। तो फॉर ए गिवन टेम्परेचर, कोई एक तापमान पे देयर इज लिमिट कि उससे ज़्यादा वो सॉल्युबल नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। तो उससे ज़्यादा अगर हम घोलने की कोशिश करेंगे तो घुलेगा नहीं, उसमें ही सेटल डाउन हो जाएगा। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल डिजॉल्व, एंड जैसे ही फिर वापस कूल डाउन होगा देन अगेन इट विल सेटल। तो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज एंड विथ जैसे ही लोअर डाउन टेम्परेचर होगा वो फिर सेटल डाउन हो जाएगा उसमें से।
डिजॉल्व नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन से इज कि एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर जब हम नो मोर देन we are not able to add any more salt to dissolve it, then we call the solution a saturated solution. That means we are not able to add a dissolve any more salt, that is called saturated solution at that temperature. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देन इट विल लॉन्गर बी ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, बिकॉज हम और भी उसमें घोल पाएंगे, बिकॉज सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। थैंक यू। लेट्स गो टू समरी ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमको ज़रूरत क्यों है सेपरेट करने की? क्योंकि हम जो मिक्सचर है उसमें से हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को निकालना चाहते हैं, एंड समटाइम्स हमको जो चीज़ें हैं कंपोनेंट वो सेपरेटली यूज में आती हैं, तो दैट्स वाई वी सेपरेटेड। एंड मेथड ऑफ सेपरेशंस क्या है? हैंड पिकिंग है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। तो हैंड पिकिंग में क्या है? तो साइज पार्टिकल जो इम्प्योरिटी है थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे वी कैन हैंड पिक इट, एंड इम्प्योरिटी शुड नॉट वेरी लार्ज, अमाउंट जो है वो बहुत कम रहना चाहिए। थ्रेसिंग क्या करते हैं? वो हम दाने को ग्रेन सीड्स को स्टैक्स से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। वी बीट द स्टैक्स एंड वी सेपरेट द ग्रेन्स। विनोइंग क्या है? वी यूज द विंड टू सेपरेट हैवियर कंपोनेंट फ्रॉम लाइटर कंपोनेंट। तो विंड हैवियर को पास में गिरता है एंड लाइटर कंपोनेंट को उड़ा के थोड़ा दूर ले जाता है, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सीविंग क्या है? वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट क्या है? उसमें डिफरेंट साइज के होते हैं, तो वी यूज डिफरेंट साइज सीव, एंड जैसा हमको ज़रूरत है कि हमको कोई बड़ा वाला जो साइज है कंपोनेंट का उसको सीव के ऊपर आ जाए, तो हमको सीव साइज ऐसे रखना है कि बड़े वाले जो कंपोनेंट है उससे छोटा हमारा सीव साइज रहे, एंड जो छोटा वाला कंपोनेंट है उससे बड़ा सीव साइज रहे। तो सीव साइज में से वो बड़ा वाला ऊपर रह जाएगा, छोटा वाला नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम सीविंग करके दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या है? इसमें हमारा हैवियर कंपोनेंट है जो वो पानी में वो सेटल डाउन हो जाएगा, एंड जो लाइटर कंपोनेंट होगा वो थोड़ा फ्लोट करेगा, तो हम फिर डिकेंटेशन से डस्ट या फिर जो हैवियर कंपोनेंट है उसको पानी के साथ अलग कर देंगे, एंड लाइटर कंपोनेंट को उसको वो सेपरेट हो जाएगा। इस मेथड से हम टू लिक्विड जो दोनों मिक्स नहीं करते होते उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज लाइटर लिक्विड विल बी ऑन टॉप एंड हैवियर विल बी ऑन द बॉटम, सो वी कैन decant the lighter one in one beaker and take the heavier one in another। अब फिल्ट्रेशन क्या है कि हम फिल्ट्रेशन एक स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, तो हम मिक्सचर को पोर कर देंगे थ्रू स्ट्रेनर, तो हमारा जो इम्प्योरिटी है और इनसॉल्युबल मटेरियल है वो इनसॉल्युबल मटेरियल स्ट्रेनर पे रह जाएगा, एंड द वाटर अलॉन्ग विद सॉल्युबल मटेरियल विल पास दी फिल्टर। तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करके सेपरेट करेंगे मटेरियल को। एंड फिल्टर पेपर क्या है? फिल्टर में पेपर में बहुत फाइन पोर्स होते हैं जो कि सॉल्युबल मटेरियल्स को अलाउ करेंगे ओनली, एंड इनसॉल्युबल को फिल्टर पेपर पे रुक जाएंगे। इवेपोरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इसमें ये हमेशा ही पानी रहेगा तो इवेपोरेशन होते रहता है, एंड इवेपोरेशन मेथड से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। साल्ट एंड वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, साल्ट बस बचेगा। हमको कभी कभी मोर देन वन मेथड सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वन मेथड सफिशिएंट नहीं होता। कंडेंसेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड फ्रॉम इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हमारा वेपर बन गया, वेपर से वापस जब लिक्विड बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल है कि जब हमको मोर देन वन मेथड यूज़ करना पड़ रहा है फॉर सेपरेशन, कि साल्ट एंड सैंड का मिक्सचर है, तो हमको कैसे उसको सेपरेट करेंगे? उसको वाटर में डिजॉल्व करना है, देन फिल्ट्रेशन करना है, फॉलोड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेट करके साल्ट एंड वाटर को अलग कर देना है। और हम जैसे बोल रहे थे सॉल्युबिलिटी विथ टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम सॉल्यूट को जो सब्सटेंस को ऐड कर रहे थे वाटर में,
वो घुलना बंद हो गया तो हम टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे वो घुलना और ज़्यादा घुलने लगेगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी जो हम बोलते हैं वो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि when we are not able to dissolve more substance in the solution, then we call that solution a saturated solution. Thank you very much. This is all for chapter 5. Let's meet in next chapter.